So now we are live. Good morning, all of you. And today we gonna discuss. We guys will continue with our discussion related to poison distribution. Is it? Mm, in a previous session, I'd already discussed with all of you that what we mean by poison distribution, when in which situation we are gonna use the poison. Uh, this is the formula for the Poisson distribution: e power minus lambda lambda raised to x factorial. That is a formula for the probability that capital X, that means my random variable, is going to take value small x. Is it? What is small x? Small x will be the number of successes for which we are looking for. Where x is running, x is having a range 0 to infinite. Is it? So this is a formula for the Poisson distribution, and we all know that what is Poisson? Poisson is actually the limiting case of binomial. ये बाइनोमियल वाला ही फॉर्मूला है, पर उसने थोड़े से कुछ चेंजेस किए हुए हैं. We had made some of the slight changes in the binomial. So one must be clear relation between binomial and Poisson. बाइनोमियल की फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो नई फॉर्मूला बन रही है, दैट इज पॉइजन. इसका मतलब क्या है? द सिचुएशन, जिस सिचुएशन में हम बाइनोमियल अप्लाई कर रहे थे, उसी similar kind of situation must be there to apply to deal with the Poisson distribution. ठीक है. अब I would like to know something about you, something from your side. कब Poisson कब applicable है? चलिए जल्दी से बता दीजिए, लिस्ट कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे आज इसके एग्जाम्पल. जल्दी से. When we can say that Poisson is applicable, Poisson distribution कब अप्लाई होता है? सर ट्रायल इन्फिनिटली लार्ज होने चाहिए और यस एग्जैक्टली. फर्स्ट क्या बात है? n must be infinitely large. What is small n? जैसे आपने बताया बेटा, you are absolutely correct. Small n means number of times you're going to repeat that particular experiment. माने कि in other words trial must be quite large, infinitely large. This is the first requirement. Yes, आपने कुछ दूसरा भी बोला था बेटा, बोल. रिपीटेशन रेयर होते हैं. रिपीटेशन नहीं, उसको बोलते हैं occurrence must be there. occurrence of successes must be there. और उसको अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो क्या बोलते थे? स्मॉल p माने कि probability of success it must be zero, must be near to zero, not zero, very very small. Yes, that is a proper word. Probability of getting success must be very very small, बहुत छोटी होनी चाहिए probability of success. इसी का और एक मतलब निकलता है that occurrence must be there. occurrence are rare, बहुत कम occurrence होगा, वो जो सक्सेस वाला पार्ट है उसका. This is the two most important information. अगर बाइनोमियल में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है, in number of times you are repeating the experiment, that means number of trials बहुत बड़े हो रहे हैं, तो probability of, and moreover probability of getting success is quite low. In that case that binomial will get transformed into Poisson. तब बाइनोमियल में से हम पॉइजन में चले जाएंगे. और एक बात, पॉइजन के लिए एक ही पैरामीटर है, वो क्या है? दैट इज लैम्बडा. इज इट ना? दैट इज लैम्बडा. और लैम्बडा की फॉर्मूला क्या हमने रखी थी, किसी को याद है? व्हाट इज लैम्बडा? परफेक्ट. लैम्बडा इज नथिंग बट n into p. किससे बात कर रहा था मैं? हु इज दैट? यशांक. गुड. लैम्बडा इज इक्वल्स टू n into p. और एक और बात थी इसमें, दैट लैम्बडा मस्ट बी फाइनाइट. और वो फाइनाइट ही रहेगा. क्यों? क्योंकि n की वैल्यू बहुत बड़ी है, p की वैल्यू बहुत छोटी है. तो इट इज नियर टू इनफाइनाइट, इट इज नियर टू जीरो. तो इनफाइनाइट इनटू क्वाइट बिग नंबर इनटू वेरी स्मॉल नंबर, इट विल बी श्योरली अ फाइनाइट नंबर फॉर ईच एंड एवरी ट्रायल. सो ये तीन कंडीशन, n काफी बड़ा हो, p काफी छोटा हो, और n into p की वैल्यू जो है वो फाइनाइट हो, then binomial will get transformed into Poisson. Is it? And this is the formula for the Poisson distribution. This formula is gonna you may say this is a probability function for the Poisson distribution. Get Poisson variate also. ये सारी बातें हो चुकी थी, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया है. फिर आई थी बात मीन की. कंडीशन भी डिस्कस कर ली, एग्जांपल भी डिस्कस कर ली. किसी को याद है what was the mean for the Poisson distribution? मीन की वैल्यू क्या थी? लैम्बडा. Yes, perfect, lambda.
यानी कि और एक n into p भी बोल सकते हैं because lambda is nothing but n into p. Is it? What was the formula for the variance? Variance क्या था? सेम वो भी lambda था. Yes. तो अब आप ही बता दीजिए what should be the standard deviation? अंडर रूट Yes, positive square root of lambda. तो ये तीनों बात थी. मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कुछ ऐसे मैंने बताया था. यस, वेरिएंस भी लैम्बडा था, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट लैम्बडा था. और उसके बाद बात आई थी किसकी? मोड की बात आई थी. किसको याद है मोड कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे? याद है दो किसी को? केस होते हैं सर, दो केस. यस, दो केस होते हैं. फॉर दैट वी आर डिपेंडिंग ऑन लैम्बडा. लैम्बडा क्या है? इंटीजर है या नॉन इंटीजर है? हाँ या ना? अगर लैम्बडा इंटीजर है या तो फिर नॉन इंटीजर है. इंटीजर नॉन इंटीजर. चलिए, अगर लैम्बडा इंटीजर है बेटा तो दो मोड रहेंगे. इफ लैम्बडा इज इंटीजर, इफ लैम्बडा इज इंटीजर तो मेरे पास दो मोड रहेंगे. दैट डिस्ट्रीब्यूशन वी विल हैव टू डिफरेंट मोड. और वो दो मोड क्या होंगे बेटा? एक तो लैम्बडा होगा खुद और एक होगा लैम्बडा माइनस वन. मान लीजिए कि लैम्बडा की वैल्यू 3 है फॉर वन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के पास दो मोड रहेंगे, एक 3 और एक 3 माइनस 1 माने कि 2. और जिस डिस्ट्रीब्यूशन के पास दो मोड होते हैं ना, if a distribution is having two mode तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बाई मॉडल. बाई मॉडल बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? बाई मॉडल. सो इफ लैम्बडा इज इंटीजर तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाई मॉडल है. यानी कि उसके पास दो मोड है. वो दो मोड कौन कौन होंगे? एक लैम्बडा होगा और एक लैम्बडा माइनस वन होगा. अब दूसरा केस, इफ यू लैम्बडा इज नॉन इंटीजर. अगर मान लीजिए कि आपका लैम्बडा है वो इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, मानी कि 3.2 है, सपोज 3.25 है, या तो फिर 1.38 है, ऐसा कुछ है जो कि एग्जैक्टली इंटीजर नहीं है, जो कि फ्रैक्शन में वैल्यू है. इफ योर लैम्बडा इज नॉन इंटीजर तो कैसे फाइंड करते थे मोड? किसी को याद है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लैम्बडा. यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ लैम्बडा. दैट मींस ये जो वैल्यू है, सपोज की मोड लैम्बडा की वैल्यू मेरे पास 3.25 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे लेना है. Now, greatest integer of 3.25 is nothing but the integer part of 3.25. In that case, mode क्या आएगा? 3 आएगा. इस केस में इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, लैम्बडा की वैल्यू 1.3 है, तो उसका मोड क्या आएगा? 1 आएगा. Mode will be 1. Is it? So, in that case, if lambda is non-integer, तब अगर mode find करना है, then mode will be greatest integer of the lambda. उस लैम्बडा का इंटीजर पार्ट इन अदर केस. और इस केस में अगर लैम्बडा नॉन इंटीजर है तो एक ही मोड रहेगा मेरे पास. दैट मींस दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नोन एज अ यूनिमोडल. यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कि उस डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक ही मोड है. ठीक है. बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोल रहा हूं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव टू मोड. गुड, गेटिंग दिस? किसी को डाउट है? ऐसा कुछ मैंने सिखाया था. चलिए जाने दीजिए उसको. Are we clear up to this? Are we clear up to this? Let me know. जो भी बच्चे यहाँ पे है वो जल्दी से रिप्लाई कर दे कि we are clear up to this. Acknowledge कीजिए चैट बॉक्स में quickly. Yes, yes, good. And after that ये reconciliation भी हमने define किया हुआ था. किसी को याद है what was the reconciliation for the Poisson distribution? Reconciliation कुछ ऐसे लिख रहे थे हम. Probability of x equals to x plus 1 is equals to कुछ एक रिलेशन यहाँ पे आएगा और साथ में रहेगा probability of x equals to x. यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है? याद है किसी को? lambda divided by x plus 1 था सर. Yes, lambda divided by x plus 1, that was the relation. अगर मेरे पास x की वैल्यू है, lambda equals to x, सॉरी x equals to x की वैल्यू है, माने कि ये, तो उससे अगली वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ. Probability for the next value of that random variable. If I am having a value of lambda, suppose कि lambda की वैल्यू 3 है, उसके lambda की वैल्यू 3 है, उसके बाद मेरे पास p of x equals to 2 की वैल्यू है, p of x equals to 4 की वैल्यू है, कि suppose that is 0.4578, जो भी 0.75 सपोज. तो इन दोनों का यूज करके
विदाउट डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, वो पॉइजन की फॉर्मूला के साथ डील करने के अलावा मैं जल्दी से बोल सकता हूँ व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 5. ये क्या होगा ये भी मैं फाइंड कर सकता हूँ. So that is the way the reconciliation is work. Here it is. Probability that x plus 1 equals to lambda divided by x plus 1 p of x, which is known as a reconciliation for the Poisson distribution, is it? ये भी हमने सीख लिया था. और क्या हमने एग्जांपल्स किए थे कुछ? Not sure. Had we gone for the example, एक दो एग्जांपल डिस्कस किए थे नहीं किए थे याद नहीं. रिद्धि विधि विधि तू बताई दे बेटा. एग्जांपल किया था बेटा कहीं बता तो नहीं किया. नहीं सर, nothing करिया. चलो तो let's start with the example. So we guys are fully loaded for the Poisson distribution, theoretical part of the Poisson distribution. We are good. What is the formula for the Poisson distribution? What is the mean? How to find the median? Sorry, not how to find the standard deviation. How to find the variance? What is the formula for the mode? ये सारी बातें हमको clear है. Even we are clear about the reconciliation now. So I can say that we guys are fully loaded for the examples of Poisson distribution. So let's go and try to solve some of the examples. मैं यहाँ पे 6 example दूंगा अभी इस section में और उसमें से 3. 3 will be word problem. 3 will be the examples based on formula. Let's go for the first one. If the mean of Poisson distribution is 1.8. If the mean of Poisson distribution is 1.8, now we are quite clear about the mean, is it ना? हमको पता है mean क्या होता है. Mean for the Poisson distribution, इसको हम lambda बोलते हैं. So lambda की वैल्यू है हमारे पास, that is 1.8. और पूरे Poisson distribution में एक ही तो टर्म है जो डिफाइन होना चाहिए, एक ही तो पैरामीटर है. अगर lambda की वैल्यू है तो मैं Poisson distribution कभी भी डिफाइन कर सकता हूँ. So I'm having the mean. आपको बस ये पता होना चाहिए कि mean मानी कि lambda. So एक mean दिया हुआ है, that means lambda is provided. First they are asking for the p of x is greater than 1. अब इसका क्या मतलब है? देखिए, Poisson distribution है तो फॉर्मूला भी है हमारे पास, p of x equals to x. This is e raised to minus power e to the power minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial. This is the formula. We know that. And यहाँ पे जो x है वो रन करता है 0, 1, 2 काफी बड़ी वैल्यू up to infinite, is it? So now first question is that I am looking for p of x is greater than 1. एक 1 से बड़ा होना चाहिए. 1 से बड़ा माने कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक जाना है. अब ये सारा तो हो नहीं सकता. What does it mean? It means that p of x equals to 2 plus p of x equals to 3 plus p of x equals to 4. ये तो जाएगा up to infinite. अब हर कोई टर्म तो हम सॉल्व करने नहीं वाले. तो do we have any other way to solve this? क्या ये आइडेंटिफाई करने के लिए कोई और रास्ता है? Do we have any alternate? सर 1 माइनस कर. Yes, perfect. 1 माइनस करना है तो क्या करेंगे? चल 1 माइनस p of x less than equal to 1. less than or equals to 1. Correct. Less than or equals to 1. मानी कि अगर मैं 1 में से p of 0, p of x equals to 0 plus p of x equals to 1 निकाल दूं तो जो बचेगा ना वो यही होगा 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to infinite, is it? So this looks quite convenient. ये हो सकता है, ये बहुत आसान है, is it? So now how we will deal? I'm just gonna replace x equals to 0 once in this formula. ये formula में एक बार x की वैल्यू 0 ले लूंगा और मुझे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ lambda है, तो वो तो है मेरे पास, lambda is 1.8. और दूसरी बार मैं x की वैल्यू 1 ले लूंगा, यहाँ पे रिप्लेस करूंगा. चलिए, yes, e raised to minus lambda is 1.8 e to the power minus 1.8. lambda मुझे पता है 1.8 raised to 0 and denominator में होगा x factorial. x अभी हम ले रहे हैं 0, so 0 factorial. This is a simplification for the first. p of x equals to 0 plus p of x equals to 1. जहाँ पे lambda है वहाँ पे, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लेंगे तो e to the power minus 1.8, 1.8 raised to 1 divided by 1 the factorial. अब जब भी आप पॉइजन के साथ काम कर रहे हो तो देखिए ये टर्म हर बार कॉमन होगा, e raised to minus lambda, तो उसको पहले से ही बाहर ले लीजिए ताकि हर बार वो कैलकुलेशन ना करनी पड़े. 1 minus e raised to power minus 1.8, उसको लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे. Anything raised to 0, 1.8 raised to 0 is always 1. Anything raised to 0 is 1.
0 factorial is even 1, so 1 by 1 it will be 1 plus e raised to minus 1.8, तो हमने कॉमन ले लिया बाहर है, 1.8 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1, सो 1.8 रेस्ट टू 1 इज 1.8, 1 प्लस 1.8 ये होगा 2.8, 2.8 इंटू ई रेस्ट टू माइनस 1.8, ये कैलसी से हो सकता है बहुत आसानी से, e टू द पावर माइनस 1.8 जो भी आ रहा है उसको 2.8 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है सभी को? Are we good up to this? Am I good? समझ में आ रहा है तो आपको बोलना है, आपको एक्नॉलेज करना है, नहीं आ रहा है तो प्लीज रेज योर वॉइस एंड टॉक टू मी, आवाज बढ़ाओ, मुझसे बात करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और एक बात काफी इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिए, मैं लिख रहा हूँ, कभी भी मैं लिख रहा हूँ p of x equals to 2, इज इट? अगर ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ p of x equals to 2, अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ ऐसा लिख रहा हूँ p of 2, if I'm using this notation p of 2, तो ये दोनों सेम ही है। If it is written that p of x equals to 2 or if it is written that p of 2, both these are having the same meaning। तो यहाँ पे काफी सारी टेक्स्ट बुक में ये जो लेंथी नोटेशन यूज नहीं करते, ये इसको क्या लिखते हैं, p of 2 plus p of 3 plus p of 4 plus p of 5, तो वो दोनों एक ही बात है। p of 3 माने कि p of x equals to 3, p of 2 माने कि p of capital X equals to 2। Take care। So let me show the solution। मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, कैसे करता है देखते हैं। There is a formula p of x is greater than 1, 1 minus p of x equals 0, x equals to 1, सिंप्लीफाई नहीं किया, वो भी मैंने कैलसी से ही डाल दिया, जो आंसर आ रहा है that is 0.5372। Now what should be the second? अब सेकंड में तो एक ही प्रोबेबिलिटी पूछ रहे x equals to 5, तो मुझे क्या करना है, इस फॉर्मूला में जहाँ पे x है वहाँ पे 5 डालना है, that's all। will be very easy। देखिए कैलसी से हो सकता है बहुत आसानी से, is it? And what should be the last? थर्ड में क्या होना चाहिए? What should be the third? थर्ड क्या होगा? देखिए probability that 0 is less than x is less than 5। अब इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होना चाहिए, बताएगा कोई मुझे? Can I take 0? Can I take 5? नो सर। तो क्या होगा बेटा बताओ? 1 to 4 को ऐड कर देंगे। Yes, p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus p of 4 only, is it? जैसे मैंने अभी बताया नोटेशन के बारे में, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p of x equals to 1 या तो फिर लिख रहा हूँ p of 1, तो दोनों का मतलब एक ही, is it? So 1 2 3 4 को ऐड करना है, उसको ऐड कर दूं, देखिए कैसे होगा, p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus p of 4, जो भी आ रहा है उस फॉर्मूला में एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 डालना है, उन सभी को ऐड करना है। ऐड करने में अगर आपको लग रहा है कि ये सिंप्लीफिकेशन काफी लेंथी होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इन ईच एंड एवरी टर्म, ये हर एक टर्म में e पावर माइनस 1.8 कॉमन होगा, उसको पहले ही बाहर निकाल लीजिए, फिर जो टर्म बचे उसी को सिंप्लीफाई कीजिए, कैलसी से बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। गुड, सो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। होपफुली यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट फॉर दिस, लेट मी रिजॉल्व थिंग, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। If the random variable has a Poisson distribution, it is clearly mentioned that Poisson distribution. अगले क्वेश्चन में भी देखिए, it was clearly mentioned that a Poisson variate is that x is a Poisson variate. तो अगले क्वेश्चन में भी clearly mentioned किया हुआ था कि we are dealing with the Poisson variate. In this question, it is clearly mentioned even कि we are dealing with the Poisson distribution. Okay, बेटा मैं थोड़ी बार मार so हटिया रहा काम करो कुछ आप। If a random variable has a Poisson distribution such that one of the relation is provided, that what is the relation that p of x equals to 1 माने कि p of 1 is equals to p of 2, probability that x is going to take value 1 or x is going to take value 2, both these probabilities are little same. This is the data we are having, ये question में दिया हुआ है, and using that what we are supposed to find first, we are supposed to find mean of the distribution. That means first question is that identify the value of mean माने कि lambda. So first we will trace the lambda, and then if we are having lambda, then p of x is greater than equals to 1 find करना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 to 4 find करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया, it will be very easy। So पहले हम क्या करेंगे, लैम्बडा की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए हमारे पास डेटा क्या है, p of x equals to 1 is equals to p of x equals to 2,
probability that x is gonna take value 1, probability that x is gonna take value 2, ये दोनों सेम है। और हम बात कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास फॉर्मूला है probability that x equals to x is nothing but e to the power minus lambda, lambda raised to x divided by x factorial. This is the formula we are supposed to deal with. तो इस फॉर्मूला में एक बार x की वैल्यू 1 और 2 लेके मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, तो ये हो जाएगा e raised to minus lambda, lambda raised to 1 divided by 1 factorial is equals to e to the power minus lambda, lambda the square divided by 2 factorial. देखिए, on left hand side I had taken x equals to 1, on right hand side I had taken x equals to 2 in this particular formula. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मुझे पता है ये दोनों सेम है, तो जो भी कैंसिल हो रहा है कर दूं, इज इट e to the power minus lambda दोनों तरफ है, निकाल दिया, तो क्या बचा यहाँ पे, lambda power 1 divided by 1 factorial, that means lambda divided by 1 will be lambda. This is lambda square divided by 2 factorial, 2 factorial की वैल्यू 2 होती है, तो lambda square divided by 2. अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, that means lambda square equals to 2 lambda, और lambda square minus 2 lambda will be 0. इसको थोड़ा फैक्टराइज करूं तो lambda कॉमन आ रहा है, देखिए lambda minus 2 equals to 0. इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या होगा, lambda equal to 0 and lambda minus 2 equal to 0, मानी कि lambda equal to 2. तो मेरे पास दो वैल्यू आ रही है lambda की, एक तो 0 है और एक तो 2. I cannot take both. I cannot take both these values. ये दोनों में नहीं ले सकता. एक और कंडीशन है पॉइजन के लिए, पिछले सेशन में मैंने बोली थी, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लैम्बडा जो होता है ना पॉइजन पैरामीटर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. हमेशा ऑलवेज ये याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइजन पैरामीटर दैट इज लैम्बडा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. इट कांट बी 0 इवन, वो 0 भी नहीं हो सकता, वो 0 से बड़ा ही होगा. जैसे कुछ भी होगा, 0.5, 0.7, 1.2, 30 point something, 1 lakh something, anything, बट वो कभी 0 तो नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता. दैट इज द रीजन आई एम गोना कैंसिल दिस ऑप्शन कि लैम्बडा 0 तो नहीं हो सकता भाई. इसका मतलब क्या है, लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 2. सो लैम्बडा इज 2. वंस वी आर क्लियर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, लैम्बडा की वैल्यू 2 है. नाउ वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई p of x greater than equals to 1 और x less than equals to 4. क्या ये अब तक जो भी है समझ में आ रहा है, लैम्बडा मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, इस रिलेशन को यूज करके लैम्बडा कैसे मैंने फाइंड किया, ये समझ में आया सभी को? Let me know. Drop a message. ये तो करना ही है आपको हर बार, so chat box तो अपना ऑन ही रखिए. अभी क्लियर, let me know over the chat box कितनों को समझ में आ रहा है यहाँ तक. लैम्बडा की वैल्यू जो मैंने फाइंड की, निकिता, आयुष, देवांश, यश, रिद्धि, निकिता कक्कड़, बाकी के 15 लोग क्या कर रहे हैं? आदित्य, बेटा तारो फ्रेंड आदित्य છે પણ મારો સ્ટુડન્ટ એ આદિત્ય છે અહીંયા. મોટો આદિત્ય, હા મારો સ્ટુડન્ટ છે ને મોટો આદિત્ય છે, તારો ફ્રેન્ડ છે ને નાનો આદિત્ય છે. આમ જો આદિત્ય કા એક રસ્તી દીધી છે. હા બેટા, चल तू काम कर, पापा काम करे છે. आदित्य सुना कुछ? आदित्य? यस सर. ठीक है, चल गुड. सो may I expect that you guys will try for p of x greater than equals to 1? कोई एक बच्चा जल्दी से मुझे p of x greater than equals to 1 ट्राई करके देगा, जल्दी से. लैम्बडा इक्वल्स टू 2 हमको पता है, ये कितना आ रहा है बेटा? 0.73. एंड आई एम इंटरेक्टिंग विद, कौन बात कर रहा है मुझसे? यशांक सर. यशांक, तो चल तू करवाएगा मुझे, બીજું સોલ્યુશન આપણે તારી સાથે કરીએ, બરોબર? હાલ તું મને હેલ્પ કરતો જા, મને નથી આવડતું બહુ જાજુ. સેકન્ડ શું છે બેટા? જો probability that x is greater than equals to 1, એટલે આપણે શું કરવાનું છે ખરેખર તું જો તો 1 1 then after 2 3 4 5 6 7 8 આ બધું ગોતવાનું છે, પણ એવું ન કરી અને આપણે શું કરશું, 1 minus p of x is equal to 0 and બસ x is equal to 1 का प्लस 1 ना આવે જો why we are looking for, तो सर wrong. ખોટું છે તો what we are looking for p of x is greater than equals to 1.
તો એને જો મારે 1 માંથી સબટ્રેક્ટ કરવું છે તો I cannot take 1, is it? I need to just subtract p of x equals to 0. तो एक ही बात सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी p of x equals to 0. આ ફોર્મ્યુલામાં જ્યાં લેમ્બડા છે ત્યાં 2 લેશું આપણે, એ આપણે ફાઇન્ડ કરી લીધું છે, અને જ્યાં x છે ત્યાં 0 લેશું, is it? It will be very very easy. And third, p of 1 is less than x is less than 4. કક્કર તું કહી દે બેટા, આમાં શું કરશું? કક્કર 1 is less than x is less than 4. What should we do? Kakkar, are you there? Kakkar. Nikita Kakkar. जो सुई गई बाची. P of 2 plus P of 3 plus P of 4. So 4 ले शकू plus P of 4 લખવાનું છે કે is it okay? बोलो बोलो बोलो. No, sir, we can't include 4. Yes, just we need to add P of 2 plus P of 3, is it? Let me show the whole solution now. First वाला ये होगा, lambda की वैल्यू 2 आएगी, जैसे हमने डिस्कस किया. This will be the formula for the Poisson variant. And ये दोनों मैं आपके सामने रख दूं. अब एक बार देख लीजिए आप हर कोई कि is it okay? क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई दिक्कत आ रही है, और we are good. Kindly observe the solution and let me know is it okay or not. Are you guys comfortable with this or not? Second का आंसर ये संग ने जो बताया बिल्कुल सही बेटा, 0.865. This is nothing but 0.8647. अगर 7 को राउंड ऑफ करो तो वो 865 होगा, करेक्ट है. So it's quite easy. Look, it is very very easy if we are knowing that we are supposed to deal with the Poisson variant as well as we are aware about the formula. अगर बताया गया है ना कि Poisson distribution है और आपको ये फाइंड करना है तो बहुत आसान रहेगा. Just one thing you must be prepared with, that is the formula. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात खत्म. बहुत आसान है ये सॉल्व करना, बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना. यशांक 0.18 नहीं आएगा बेटा थर्ड का आंसर. यशांक कहीं पे गलती हो गई होगी, देख एक बार. यशांक, you are dropping a message over the chat box that the answer for the third is 0.18, but as per my calculation it is 0.4511. देख ले एक बार स्क्रीन पे, it is 0.4511. तेरी हो सकता है मैंने भी गलती की हो, तो एक बार देख लेना. Are you guys aware about, okay, this is a batch, na? Hello? 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 Yes, sir. Yes, sir. 17 એટલે 14 છોકરાઓ છે. All 14 students, those who are here with me, unmute yourself. All 14 will unmute yourself right now. All 14. ભલે ડિસ્ટર્બન્સ આવે, ઇટ્સ ઓકે. બધા અનમ્યુટ કરો એક સાથે. Yes. જે અનમ્યુટ ન કરતો એને હું બહાર કાઢીશ. જલ્દી से unmute yourself right now. Girish, unmute yourself. Jadeja, unmute yourself. Nikita Kakkar, unmute yourself. Girish and Nikita Kakkar, unmute yourself. Girish Purohit, Nikita Kakkar, unmute yourself. हेलो, મને એવું લાગે છે કે બધા સૂતા છે, તો આપણે એક સાથ બોલીશું, ભારત માતા की जय. जय. आवाज ही नहीं आई मुझे, यहाँ तक आवाज ही नहीं आई. फिर से एक बार, भारत माता की जय जय. जय. नहीं, कोई नहीं बोल रहा. आधे बोल रहे, आधे सो रहे. भारत माता की जय. जय इनकलाब. जिंदाबाद. जिंदाबाद. अरे ये भी यार कॉमन सा फॉर्मूला याद नहीं है. इनकलाब जिंदाबाद. जिंदाबाद. जिंदाबाद होता है ना. हाँ, फिर से एक बार, चलो जोर से पूरी ताकत लगा के. इनकलाब जिंदाबाद. जिंदाबाद. अंग्रेजों भारत छोड़ो. अंग्रेजों भारत छोड़ो सर, छोड़ दिया सर, कपूत के छोड़. जाग रहे. बाकी ये काफी, ये तो सब कॉमन फॉर्मूला है, हम प्राइमरी से सीख रहे हैं. तो यार बात करो मुझसे. चलो म्यूट डाल दो सब, हर कोई म्यूट करो, जल्दी से म्यूट कर दो.
यस म्यूट कर दे, हाँ थैंक यू। अरे जागते रहो, इंटेंशन वाज ओनली दैट, ओके, बात करते रहो, ऐसे ही नहीं अटेंड करना है। वो अगर वो अटेंडेंस के लिए यहाँ पे आ रहे हो कि भाई मैं ऑन करके छोड़ दे रहा हूँ वो सब तभी अटेंडेंस है, ऐसा नहीं है, तो फिर बोल दो मुझे, मैं अटेंडेंस कर दूंगा, ठीक है, डोंट डू दैट। हेलो सर। यस प्लीज। हाँ गिरीश चल। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय। अंग्रेजों देश छोड़ो। देश छोड़ो। क्या बात है, पहली बार तेरी आवाज सुनी हमने। अच्छा है, चल गुड बी। हाँ हाँ, रिप्लाई करता रहे, बात करता रहे, सोना नहीं है। हाँ सर जरूर। एक सो गई है दरेड़ी वाली कक्कड़ ने उठा लियो, પછી મેસેજ કરતો એક પર્સનલ માં તું કે સરે તને પકડી લીધી, સુતી હતી નહીં। हाँ सर। हाँ चलो, now what I was saying कि are you guys गिरीश म्यूट कर दे बेटा, अभी गिरीश म्यूट कर दे। हाँ सर। This is a lab batch A, or when I was delivering a session related to the binomial distribution, I had delivered some of the topics related to, मैंने Excel में भी सिखाया था आपको, याद है? How to deal with the Excel for the binomial distribution. Had I? क्या मैंने सिखाया हुआ है कि नहीं सिखाया हुआ है कि एक्सेल से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला कैसे रन करानी है? हाँ बोल दो, ना बोल दो, मुझे याद नहीं है कि मैंने इस लैब में सिखाया कि नहीं सिखाया। नहीं सर, नहीं सिखाया था। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला कैसे रन करानी है, क्या ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि नहीं किया? हाँ कर दिया सर। यस बोल, जस्ट बोल रहा, सिखाया था। हाँ सर सिखाया था, ये वाला नहीं सिखाया। क्या है पॉइजन वाला अभी हम करते हैं, हाँ वो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। यू मे यूज योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट फॉर द फुल कैलकुलेशन ऑफ ऑल सच। यहाँ पे जो आ रहा है ना, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ कि अभी जो किसी एक ने आंसर दिया, शायद यशांग ने दिया था, ये भाई थर्ड का आंसर आ रहा है 0.18 और एक्चुअल आंसर था 0.45। फिर यशांग ने वो क्लियर भी किया कि सर नहीं, थर्ड का आंसर है 0.45। पर अभी अगर आपको जल्दी से कैलकुलेट करना है तो आप एक्सेल का यूज कर सकते हो। इट इज नॉट, एक्सेल तो ऐसी चीज है जो एग्जाम में आपके साथ नहीं रहेगी, ये तो पक्की बात है। पर अभी के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप असाइनमेंट कर रहे हो, कि जब आपके पास लैपटॉप का एक्सेस है, देन यू मे यूज दैट पर्टिकुलर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो कर सकते हैं आप, ठीक है, उसका यूज कीजिए, उससे आपको काफी कुछ एडवांटेज होगा। You guys will be familiar with a very powerful tool of Microsoft Office. मैं कोई एक्सेल का वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, पर वो है हमारे पास, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर वो सिर्फ डेटा या टेबल बनाने के लिए यूज मत करो, वो बहुत ही पावरफुल टूल है, उसको बहुत स्मार्टली यूज कीजिए। जैसे मैं अभी दिखाऊंगा सम ऑफ द नेक्स्ट एग्जांपल्स की वो कैसे करेंगे। चलिए अभी जाते हैं एग्जांपल 3 पे। यस सर, यस बेटा प्लीज। एग्जाम देगा, कल आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है? Now what is third question? Third question is, if x is Poisson variates at that p of x equals to 0 is equals to probability that x equals to 1, then find p of x equals 0 and using the recurrence relation formula find the probability that x equals to 1, 2, 3, 4, 5. It is clearly mentioned that we are dealing with Poisson variate, that means कि Poisson distribution से बात हो रही है, और एक relation provide किया हुआ है, this is the relation, and बहुत clear mention किया हुआ है कि we are supposed to find some of the probabilities of x using the recurrence relation only. जब उन्होंने बोला है कि recurrence relation का यूज करके ही फाइंड करना है, तो आप मैन्युअली अगर फाइंड करोगे, वो फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करोगे, then you will not able to secure the mark in the examination. If this question is in your examination, then if it is mentioned that use the recurrence relation formula, तो वही फॉर्मूला यूज करना है, वो जो है लैम्बडा डिवाइड बाय x plus 1 into p of x, x plus 1 sorry, into p of x, probability of x, which is equals to p of x plus 1, वही यूज करके हम करेंगे, ठीक है? But let's try to solve this question. कैसे करेंगे? हमारे पास कुछ डेटा है। हाँ, एक बात है कि पता है कि पॉइजन के साथ काम कर रहे हैं,
So let's mention that we are dealing with the poison and one more. अगर poison के साथ काम कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला उसकी p of x equals to x की फॉर्मूला क्या है? उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है e power minus lambda lambda raised to x divided by x factorial. This will be our formula. यहाँ पे x जो है वो रन हो रहा है 0 1 2 up to infinite तक, और एक रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है? p of 0 is equals to p of 1. तो इसका यूज करके we will able to find the lambda. Use this to identify lambda, and once we are having lambda, then we will able to go for the recurrence formula. तो इसको अगर मैं अप्लाई करूँ इस फॉर्मूला में, एक बार x की वैल्यू 0 ले लूँ तो क्या होगा? e power minus lambda lambda raised to 0 divided by 0 factorial, which is equals to e power minus lambda lambda raised to 1 divided by 1 factorial. मैंने एक बार x की वैल्यू 0 ली, एक बार x की वैल्यू 1 ली, e power minus lambda कैंसिल होगा, lambda raised to 0 is nothing but 1, 1 divided by 1 is 1, and lambda raised to 1 is lambda divided by 1 is 1. It's lambda, sorry. So lambda की वैल्यू 1 है, ये मुझे पता चल गया. अब once I am having the value of lambda, and अगर मुझे याद है what is the recurrence formula? Now, recurrence formula क्या थी? देखिए मुझे याद करवा लीजिए. Recurrence formula was something like that. P of x equals to x plus 1 is equals to lambda divided by x plus 1 into P of x equals to x. This is a recurrence relation formula for the Poisson distribution. अब यहाँ पे आपको x की अलग-अलग वैल्यूज रन करवानी है. आपके पास P of 0 है, is it? पता है आपको? Is it? Sorry, lambda की वैल्यू है, lambda equals to 1 है. तो मुझे एक ये फॉर्मूला रन करवाने के लिए कम से कम एक प्रोबेबिलिटी चाहिए. तो पहले मैं फाइंड करूंगा p of 0, p of x equals to 0. जल्दी से कर ले इस फॉर्मूला को यूज करके. p of 0 क्या होगा? जहाँ पे स्मॉल x वहाँ पे 0 ले रहा हूँ, तो इट विल बी e power minus lambda lambda raised to 0 is nothing but 1 and 0 factorial will be 1. So e power minus lambda माने कि lambda की वैल्यू 1 है, e raised to minus 1 माने कि 1 by e की जो भी वैल्यू आ रही है that will be my p of 0. So p of 0 will be 1 divided by e. जो भी आएगा suppose 0 point something anything, that is 1 divided by 2.71. e की वैल्यू हमको पता है 2.71 something. 1 divided by 2.7 that will be 0 point something. Once I am having a value of p of 0, अगर मेरे पास p of 0 की वैल्यू है और यहाँ पे मैं x equals to 0 ले लूँ इस फॉर्मूला में, तो मुझे p of 1 मिलेगा. Let x equals to 0 and this formula. अगर x की वैल्यू 0 ले लूँ तो क्या मिलेगा? p of capital X 0 plus 1 मानी कि 1 is equals to lambda पता है मुझे 1 है, x में 0 ले रहा हूँ, 0 plus 1 will be 1 into p of x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, small x की वैल्यू, so capital P probability of x equals to 0. p of x equals to 0 मेरे पास है, यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा and I will able to find p of 1. और दूसरी बार मैं क्या करूंगा? Let x equals to 1, एक की वैल्यू 1 ले लूंगा. अब मेरे पास p of 1 भी होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा p of 2 equals to 1 divided by 1 plus 1 is 2. p of 1 अगर है मेरे पास तो p of 2 भी मिलेगा. नेक्स्ट x की वैल्यू 2 रखूंगा तो p of 3 मिलेगा, उसमें मुझे p of 2 चाहिए होगा. So by that way you can use the reconciliation formula to identify some of the value. Look, this is the perfect solution. Now once go through it, यहीं पे हूँ, एक बार देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन, एक बार ठीक से देख लीजिए ध्यान से. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए जल्दी से. They're already saying Nikita. Okay, beta, it's fine. Go through this solution once. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, समझ में आ रहा है तो एक्नॉलेज कीजिए जल्दी से. अभी टेक योर टाइम, आप 20-30 सेकंड ले सकते हैं. देख लीजिए सॉल्यूशन पूरा स्क्रीन के ऊपर है. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है रिप्लाई कीजिए जल्दी से. I need your reply over the chat box.
Let me know over the chat box whether you guys are comfortable with solution or not. जल्दी से बता दीजिए. Drop a message over the chat box. बोलने वाले हैं या फिर से बोलवाऊं एक बार भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद. मानव को पता चल रहा है, विधि मानव निकिता 3 को समझ में आ रहा है, बाकी को नहीं आ रहा है. यशांक को आ रहा है. देवांश इज डन, जस्ट इज डन. 6 लोग हैं जिसको समझ में आया, फिर यश को समझ में आया. ठीक है. So hopefully all of you are getting this. Now let's go for one of the word problem. आगे के तीनों क्वेश्चन, एग्जांपल 1 2 3, was clearly mentioned in the instruction that या तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ था या तो फिर पॉइजन वेरिएट लिखा हुआ था. हमारे सेक्शन में देखिए, इन एग्जांपल 3 it was clearly mentioned that we are dealing with the poison variant. Is it? लिखा हुआ. एग्जांपल 2 में भी लिखा हुआ था. लेट मी शो. यस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पे was clearly mentioned that we are dealing with the poison distribution. Example 1 में भी लिखा हुआ था poison variant. अब नहीं होगा क्योंकि now we are going to deal with the word problem. So the toughest part अभी okay example 4 में भी है. ये कोई बड़ी बात नहीं है. I can give this particular to mean find करना है और variance find करना है. Okay, mean की वैल्यू क्या है poison के लिए? What is mean? जल्दी से बताइए. मीन क्या बोलते हैं हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? व्हाट इज मीन? लैम्बडा. यस, लैम्बडा. एंड तू ही बता बेटा, व्हाट इज वेरिएंस फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? वेरिएंस क्या होता है? वो भी लैम्बडा होता है. इज इट? यहाँ पे 2 क्वेश्चन है लेकिन मांगा तो एक ही है. लैम्बडा की वैल्यू है, लैम्बडा है, वही उसको मीन बोलेंगे, उसी को वेरिएंस बोलेंगे. एंड जैसे अगले क्वेश्चन में एक रिलेशन था, ऐसे यहाँ पे भी एक रिलेशन है, पर ये रिलेशन थोड़ा बड़ा वाला है. But I don't think so you guys will be not comfortable with this. Let me show the solution without discussion. मैं पूरा solution आपको दे रहा हूँ discussion के बगैर. देखिए तो एक बार आप कितने लोग हैं जिसको समझ में आ रहा है. देख लीजिए एक बार. There is a solution. Poison distribution की फॉर्मूला निकाली, वो रिलेशन लिखा, रिलेशन में x की वैल्यू रिप्लेस कर दी, सिंप्लीफाई किया, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसको सॉल्व किया और मुझे मीन और वेरिएंस की वैल्यू मिली. अगर कहीं पे दिक्कत होगी, वेट, आई एम गेटिंग वन कॉल फ्रॉम दिव्यजीत, माइट बी, सो आई एम पुटिंग यू गाइस ऑन. मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, तब तक ये देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. आई विल बी बैक इन 1 मिनट.
Sorry, I was having a call from one of our classmates. दिव्यजीत ने फोन किया था, उसको थोड़ा कुछ काम था फीस रिलेटेड, so I was with them. Now, let me know क्या इस in this particular ये जो सॉल्यूशन है एग्जाम्पल 4 का, क्या वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितनों को समझ में आ रहा है? बात कीजिए जल्दी से. अगर नहीं समझ में आ रहा है देन आई विल गोना एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. जो भी है स्क्रीन के ऊपर वो मैं सारा समझा दूंगा एक बार. सो जल्दी से बताइए मुझे, आर यू गाइस कंफर्टेबल विद दिस और नॉट? कितनों को क्लियर है? काफी सारों को क्लियर है. वाह रे वाह. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये ऐसा नहीं है कि हर बार मैं पूछता हूँ तो आपको यही बोलना है, यस सर, क्लियर सर, वी आर गुड सर. ऐसा नहीं है ना, आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो ना. देखिए काफी क्रिटिकल है सब कुछ. अगर कहीं कोई डाउट है, देखिए कि शायद डाउट कहाँ पे हो सकता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर में. शायद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में डाउट हो सकता है. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर पा रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? लैम्डा रेज़ टू 4 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. क्या ये समझ में आया? इसको कैसे मैंने फैक्टराइज किया? मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, एक बार बता दूं, मैं ही बता दूं. इसको थोड़ा कन्वर्ट कर रहे हैं. आप ले लीजिए लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू टी, अज्यूम कर लीजिए. लेट लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू टी, अजम्पशन हमारी छोटी सी. तो ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इक्वल टू 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला. -4 के एक से फैक्टर आइडेंटिफाई कीजिए जिसका एडिशन 3 हो रहा है, तो वो क्या होगा? 4 1 जा 4, तो t प्लस 4 एंड t माइनस 1. दिस आर द फैक्टर्स, इज इट? अब इससे मुझे t की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी -4, एक मिलेगी 1. अब t मैंने क्या लिया हुआ है? t मैंने लिया हुआ है लैम्डा स्क्वायर, इज इट? दैट मींस दिस इज नथिंग बट द लैम्डा स्क्वायर. तो लैम्डा स्क्वायर की दो वैल्यू है, एक -4 एक 1. देखिए यहाँ पे रहा लैम्डा स्क्वायर की दो वैल्यू है, एक -4 और एक 1, और उसमें से -4 हम रिजेक्ट कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज लैम्डा इज पॉजिटिव. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, इज इट? तो लैम्डा स्क्वायर अगर -4 है वो तो इमेजिनरी चला जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू -4 हो ही नहीं सकता. तो उसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा स्क्वायर 1 ही होगा. अब लैम्डा स्क्वायर 1 होगा तो 1 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो 1, तो मानी कि लैम्डा की वैल्यू 1 है. अब वंस वी आर हैविंग अ वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो मीन भी 1 है और वेरिएंस भी 1 है, क्योंकि मीन भी तो लैम्डा है, वेरिएंस भी तो लैम्डा है, बिकॉज ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है. अब कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? बोलो विधि बोल दो बेटा. विधि, यशांक, Yes, sir. It's clear. Nikita. Clear? Sir. Yes, sir. So let's go for 1 or 2 word problem. Read the question carefully. Read this question carefully. आपको क्या करना है? I will pick a person randomly from the audience. जिसको भी मैं पूछ रहा हूँ उसको सिर्फ मुझे क्वेश्चन समझाना है. I'm not looking for the solution. सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाना है मुझे. ये क्वेश्चन 5 के इंस्ट्रक्शन है. एक बार मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि इंस्ट्रक्शन क्या है. ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू आर हैविंग 20 सेकंड्स. हाँ बेटा, पेंसिल जो है आपको भी पिंक वाली तो पानी की ले पास. लेकिन खादू में भी मौत को ऐसा है रमे माँ कौन जो बा बोला या बेटा नहीं बोला So, who will gonna explain the question for me? Who will gonna explain this question for me? गिरीश, क्या आप कर सकते बेटा? गिरीश या तो फिर depend. Any of you? गिरीश, depend. Any of you? गिरीश, depend.
कैन यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, एनी ऑफ यू? हाँ ना बोल दो, नहीं कर सकते तो ना बोल दो, कर सकते हैं तो अनम्यूट कीजिए। मैं डिवाइस चेंज कर ली है सर। ठीक है, समझ तो आ गया। तो बता सकता है तू हमें क्या है क्वेश्चन में? एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा गिरीश, इफ यू कैन। तो बहुत टाइम लगा था गिरीश, जब भी तुझसे बात करूँ ना। हाँ बोल दे, ना बोल दे बेटा, या तो फिर अगली बार मैं तुझे पूछूं ही ना। अबे यस सर का क्या मतलब होता है गिरीश? किसके लिए यस सर बोल रहा है? अगली बार ना पूछो इसके लिए। एक मिनट सर, हाँ टाइम ले ले अपना। दीपेन कोरडिया, आर यू देयर? दीपेन कोरडिया, Dipen, Dipen, can you explain this question for us? क्या आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या? हेलो सर, आवाज आ रही है? यस अब आ रही है, बोल बोल बेटा बोल, जल्दी से हाँ बोल। सर। सर, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 4000 लोगों के अगेंस्ट है ना, दोनों आंखों से अंधे होने का, कार एक्सीडेंट के अंदर जो अंधे हो जाते हैं ना लोग दोनों आंखों से, उनका इंश्योरेंस देती है। ठीक पक्की बात है। है। प्रीवियस डेटा के हिसाब से जो रेट इन्होंने निकाली थी ऑन एन एवरेज, 1 लाख में से 10 जने ऐसे हैं कि जिनका एक्सीडेंट होता है और उन्हें इस टाइप की इंजरी होती है कि ये दोनों आंखों से अंधे हो जाते हैं। क्या ठीक बात है है। यार। तो क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 ऑफ द इंश्योर, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि किसमें से 3 से ज्यादा जने इंश्योरेंस लेंगे उसी साल के अंदर। हाँ, एक साल में 3 से ज्यादा लोग वो क्लेम करेंगे कि भाई उन लोगों का हाँ एक्सीडेंट हो सर, गया, दोनों इंश्योरेंस आंखें क्लेम चली। करेंगे सर। यस सर। तो एक बात बता गिरीश, यहीं पे रहना, म्यूट मत करना। एक बात हाँ, बता हाँ, बेटा, पूरी इंस्ट्रक्शन में कहीं तूने देखा बाइनोमियल लिखा हुआ है या तो फिर पॉइजन लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है? नहीं सर, बाइनोमियल और पॉइजन ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर तो नहीं दिया हुआ है। बाइनोमियल भी नहीं लिखा, पॉइजन भी नहीं लिखा। क्या डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ लिखा है? डिस्क्रीट नहीं लिखा है। नहीं सर, लिखा तो इसमें कुछ नहीं है सर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है। देख, हाँ सर। सिर्फ एक ही सर बात आ सिंपल रही है, एक प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। पूछी है बस। एक प्रोबेबिलिटी वर्ड आ रहा है। हाँ तो सर। देख, इफ अगर द सेम क्वेश्चन, देखिए ये सब हर कोई लोग बहुत ही ध्यान से ये बात सुने जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। गिरीश म्यूट में डाल दे बेटा। हाँ हर सर। कोई बंदा ध्यान से सुने। देखिए अभी राइट नाउ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज हैविंग दिस लेबल दैट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अभी लेबल है, देखिए लेबल है कि दिस इज एग्जांपल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नहीं हो तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है, if this question, the same question is there in your final examination for 8 marks, then क्या करेंगे आप? आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये क्या ये प्रोबेबिलिटी है, क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्या बायस थ्योरम जाएगा, क्या टोटल प्रोबेबिलिटी जाएगी, या तो फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बात होगी, क्या होगा? अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता चले तो फिर उसमें तो 2 कैटेगरी है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट में 2 है, कंटीन्यूअस में भी 3 हम पढ़ने वाले हैं। तो इन 5 में से कौन सा? तो पहले तो डिसाइड करेंगे डिस्क्रीट है या कंटीन्यूअस है। डिस्क्रीट है क्यों? क्योंकि मैं कोई भी एक कार चूज करूं, कोई भी एक पर्सन चूज करूं, तो उसका एक्सीडेंट हुआ है या तो नहीं हुआ है। इज इट either he has claimed that particular policy or not? तो हाँ या ना में आंसर है, मानी कि डिस्क्रीट है। हाँ या ना में आंसर है, मानी कि बाइनोमियल वाला केस है। 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो सक्सेस या तो फेलियर। अब अगर वो बाइनोमियल है ना, तो भी हमारे पास 2 केस है। अगर वो एक्सपेरिमेंट बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है तो भी 2 केस है। बाइनोमियल है तो या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जा सकता है या तो फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जा सकता है। अब वो किससे डिसाइड करना है? वो डिसाइड करना है नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहां पे मैं बात कर रहा हूं 4000 लोग की। Is it? और देखिए व्हाट इज द रेट? 10 लाख में से एक साल में जो प्रीवियस डेटा उसके पास है, हिस्टोरिकल डेटा जो उसके पास है, उससे पता चल रहा है कि 1 लाख में से, नॉट 10 लाख, 1 लाख में से 10 लोग ऐसी पॉलिसी क्लेम कर रहे हैं। मानी कि अगर वो एक्सीडेंट होने की बात जो है, वो पॉलिसी क्लेम करने की बात जो है, उसको मैं सक्सेस कंसिडर करूं ना, then that probability of success is very very low.
that probability of success is very, very low. Number of trial is very big. Probability of success will be 10 divided by 1 lakh, that is 0.0001. बहुत छोटी होगी. So n की वैल्यू काफी बड़ी, p की वैल्यू काफी छोटी. That means कि भाई ये भले बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है पर इसमें n बड़ा है, p छोटा है. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, मैं करूंगा क्या? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. Is it? Is this thing is clear? अगर इतनी बात समझ में आई ना तो बात खत्म. अगर if you can decide this thing तो बात खत्म. ये अगला वाला इक्वेशन है, दिस इज द सॉल्यूशन, नथिंग एल्स. कोई बड़ी बात नहीं, ये सॉल्व करना बहुत आसान है. देख लीजिए, अब एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स. ये सॉल्यूशन देखिए, लेट मी नो कि आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा. आई विल बी बैक इन 1 मिनट जस्ट. ओके, आप सॉल्यूशन देखिए पूरा. पानी से अलग हुए थे. अरे नहीं, પછી બંધ થઈ ગયું. બહાર આવી જમાડી. કઈ બાત એક વાગે મારે બેન હોય. अरे मारेगा. So hopefully you guys are getting this. समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? गिरीश अनम्यूट कर अपने सबको. गिरीश बात कर मुझसे फिर से. हाँ सर, मेरे को आ गया सर समझ में. आपने बताया जिस देखो, तरीके से. p काफी छोटा है ना, n की वैल्यू काफी बड़ी है. Since p is very small, n is very large, Poisson distribution is applicable. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? टू डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन. और किसको समझ में आ रहा है? निकिता, 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 विधि, रिद्धि, निकिता, विधि, रिद्धि. फिर और कौन है? हाँ सर, समझ में आ रहा है. अनुज, आयुष, देवांश, दीपेन, यशांक, जाडेजा. मैं जो बोल रहा हूँ वो काफी क्रिटिकल है बात. ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो बहुत कंफ्यूजन होगा. इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट रिगार्डिंग टू दिस, और वो कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो, उसके लिए मैंने काफी टाइम दिया हुआ है आप लोगों को, काफी कुछ समझाया है, काफी कुछ स्पेंड किया आपके साथ. गुड 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 गुड. तो देखिए, अगर मेरे पास p और n दोनों है, then लैम्बडा आ जाएगा. n into p is nothing but the लैम्बडा 0.4. अब लैम्बडा है, अगर मेरे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्बडा है, तो मुझे जो चाहिए मिल सकता है, हमको पता है. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. अब वही फॉर्मूला नेक्स्ट स्लाइड में मैं कॉपी कर रहा हूँ. देखिए, यही फॉर्मूला है. वो लैम्बडा की वैल्यू 0.4 है, वो मैंने डाल दी वहां पे. अब व्हाट वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर मोर देन 3 ऑफ द इंश्योर्ड विल कलेक्ट द पॉलिसी. माने कि 3 से ज्यादा लोग क्लेम करेंगे, 3 से ज्यादा लोग का एक्सीडेंट होगा, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 या 3 से ज्यादा लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है? दैट मींस वी आर लुकिंग फॉर p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. इसका मतलब क्या है कि हम फाइंड कर ले प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 कार एक्सीडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 4000 पीपल. अब 3 से ज्यादा कितना हुआ? देख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक जाना है? 4000 तक जाना है. That is not, which is not convenient. तो क्या करेंगे? We're gonna subtract it from 1 minus. We're gonna subtract that particular data from 1 minus. X greater than 3 चाहिए मुझे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चाहिए. तो उसको मैं उसको subtract कर दूंगा. 1 minus p of x is less than 3 से. Less than 3 क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 3 ही होगा. Less than equals to 3, sorry. So ये 4 वैल्यू जो है उसको सिंप्लीफाई करूंगा, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और निकाल दूंगा 0. जो भी आंसर आ रहा है दैट इज 0.0077. अब देखिए, अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, एक और छोटा सा डाउट. वो कैलकुलेशन का डाउट तो नहीं होगा, पर देयर माइट बी वन क्वेश्चन इन योर माइंड कि भाई सर ये आई एम नॉट गोना रिवील दैट. आप बताइए, और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? जल्दी से बता दीजिए. यशंक इज सेइंग 0. सर मोर देन 3 बोला है. हाँ, मोर देन 3 बोला है. मोर देन, स्ट्रिक्टली मोर देन 3, माने कि 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 4000. इज इट? तो वही है. देख, प्रोवाइड दैट x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3. स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 अगर मुझे निकालना है तो क्या चाहिए? p of 4, p of 5, p of 6 अप टू p of 4000. इज इट? तो उससे आगे वाला क्या होगा बेटा? p of 0, p of 1, p of 2, p of 3. तो उसको अगर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये रहा देख, 1 minus p of 0, 1, 2, 3, इसको निकाल दूं मैं 1 में से, तो जो बचेगा वो 3 से बड़ा ही होगा ना. आया समझ में कि नहीं? ये सांग दादा क्या रोंगे बेटा? ये रोंगे क्या रोंगे?
ओके ओके, आपका आंसर होंगे। हाँ। यशंग, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी कोई डाउट होगा शायद आपके दिमाग में, कैल्सी को कैसे यूज करे, इसके लिए है कुछ ऐसा? सर बोला सर बोला। मेरे को डाउट है सर, जैसे कि अगर आपने अभी बताया कि इसमें प्रोबेबिलिटी के चांस बहुत कम है, करीब करीब 0 के आसपास ही है, तो अपन ने पॉइजन ऐसे यूज कर, पर अगर प्रोबेबिलिटी 1 के आसपास होती, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते प्रोबेबिलिटी के, तो बाइनोमियल से काम चल जाता क्या? तो बाइनोमियल से तो यहाँ भी काम चल जाता है। देख, द सेम, अच्छा सर। ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ना, इसको अगर हम बाइनोमियल से सॉल्व करना चाहें तो भी हो सकता है, पक्का हो सकता है, आंसर सेम ही निकलेगा। पर क्या होगा, ओके सर। अगर तू एक बार सोच के देख क्या होगा, अगर इसी सिचुएशन में तुझे बाइनोमियल अप्लाई करना पड़े तो क्या होगा? हाँ सर, थोड़ा हो तो जाएगा हार्ड। क्या हो जाएगा? क्यों क्यों हार्ड होगा, बता सकता है तू मुझे? फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल की? सर वो तो देखना पड़ेगा, मेरे तो दिमाग से निकल गया। अरे तेरे दिमाग से कैसे निकल सकता है? मैंने पढ़ा है, ऐसा नहीं निकल सकता। देख, याद कर एक बार। हाँ सर। सर वो Let me- n upon n minus x factorial into यस यस प्लीज, कौन बोल रहा है? q raised to x और q raised to n minus x। NCX, n क्या है? अगर 4000 है, अभी हमारे पास n क्या है बेटा? 4000 है, इज इट? x हमको क्या चाहिए? x हमको चाहिए 4 5 6 7 8 9 10। तू एक बार करके देख, व्हाट विल बी द 4000 C10? 4000 C10 तेरे पास अगर कैलसी पड़ा है कहीं आसपास, कैलसी है तेरे पास? कैलसी लेके बैठा है अभी? हाँ या ना? मेरे पास है कैलसी। लेट मी डू 4000 C10। मेरा कैलसी बोल रहा है मैथ एरर, नहीं समझ में आया। काफी सारे लोग कंफ्यूज है कि सर क्या बात करें, इज इट ना? let me choose my screen, sorry। अब स्क्रीन के ऊपर हूं तो वापस आऊंगा तो ये चली जाएगी क्या? रुक जा। अभी के लिए हर कोई बच्चा यहाँ पे है। आई नीड ऑल ऑफ यू हियर। एन की, सॉरी, आई नीड टू पिक अ रेड वन, तभी विजिबल होगा ये। रेड ले लूं, चल। अभी के लिए एन की वैल्यू क्या है बेटा? 4000, इज इट? पी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस क्या था? वो 0.0001 था ना शायद। हाँ। और व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, पी हमारे पास है तो क्यू तो मिल सकता है, इज इट? आई एम नॉट वरीड। हम क्या कर रहे हैं अभी? सेम क्वेश्चन को बायनोमियल और पॉइजन दोनों से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पॉइजन से जब हमने अभी एक्सप्लेन किया कि वी आर लुकिंग फॉर पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो क्या हुआ? वो 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3 करना है। दैट मीन्स के 1 माइनस ब्रैकेट पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 निकालना है, इज इट ना? पॉइजन से हो सकता है, हमको पता है, क्योंकि पॉइजन वाली फॉर्मूला क्या है? e power minus lambda raised to x divided by x the factorial. This is a formula for p of x equals to x. Is it? This situation is with the Poisson distribution. यहाँ जो पूरी बात कर रहा हूँ वो Poisson के लिए। Same. If I wish to go using the binomial, तो binomial की फॉर्मूला क्या है? देख, binomial की फॉर्मूला कुछ ऐसी थी, p of x equals to x is nothing but ncx combination of n with x, p raised to x and q raised to n minus x. This was the formula, is it? For the binomial. अब इसमें सिचुएशन तो सेम ही है, जैसे मैंने बोला पॉइजन अप्लाई करो तो बाइनोमियल भी हो सकता है, पर हम क्यों नहीं कर रहे, वो रीजन मैं आपको दे रहा हूँ। n की वैल्यू 4000 है, p जो है वही सेम है, इसे अब एक बार देख लो। मुझे अगर चाहिए, शायद मुझे चाहिए यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, p of x is less than 3, तो सेम सिमिलर वे आई एम गोना डील विद 1 माइनस p of 0, फिर p of 1, फिर p of 2, फिर p of 3, जो भी मैं करूंगा सेम ही होगा। पर क्या दिक्कत क्या आएगी? व्हेन आई विल गो फॉर p of 2 में करूंगा ना जब बाइनोमियल से, तो इस फॉर्मूला में जहां पे n है, जहां पे x है वहां पे 2 डाल रहा हूं, देख में, तो क्या होगा? 4000 C2, n की वैल्यू 2 ले रहा हूं, फिर p is what? 0.0001 raised to 2 into q की वैल्यू क्या आएगी? 1 minus that will be 0.999 something raised to 999 raised to क्या आएगा? वो 2000, yes,
सर पॉइंट 4 बार 0 और 1 है, क्योंकि 1/1 लाख था इसलिए। ओके तो गलती है यहाँ पे, लेट मी करेक्ट। यस 0.001। देख ये कैलकुलेशन सूटेबल नहीं होगा। देख 0.99999 रेज़ टू 3998 बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चला जाएगा सर। और उससे भी बड़ा ये है, देख ये 4000 C2, ये बहुत बड़ा हाँ होगा। सर। इवन इफ यू ट्राई टू, अब ये तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मान ले अगर हम देख रहे हैं P of 150, सपोज वी आर लुकिंग फॉर P of 150, हो सकता है क्वेश्चन में, तो हाँ यहाँ पे बाइनोमियल से अगर तू कर तो पहला टर्म क्या आएगा 4000 C150। अब ये डालेगा हाँ ना सर। तेरे साइंटिफिक कैल्सी में 4000 C150, साइंटिफिक कैल्सी से इसको सॉल्व करने जाएगा, वो कैल्सी कोमा में चला जाएगा। इट्स अ वेरी 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 बिग नंबर। ये हाँ नहीं हो सर। सकता कैल्सी से हाथ खड़े कर देगा भाई। ढूंढ लो कोई और, मैं नहीं आपको बताने वाला। So this is the reason for such kind of situation कि जहां पे बायनोमियल की फॉर्मूला हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। पर देख बेटा, ऐसा तो नहीं कि ये नहीं हो सकता, वी कैन डू इट मैन्युअली। ये जो है वो मैन्युअली कर सकते हैं हम, पर इसमें पूरा दिन जाएगा ना, इट इज नॉट कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट नहीं है। सो दिस इज द रीजन कि हम बायनोमियल वाली ये जो फॉर्मूला है ना, उसको मॉडिफाई करके नई एक फॉर्मूला बनाई, उसको पॉइजन बोला। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगी, क्योंकि हर बार इस हर एक फॉर्मूला में देख P of 0, P of 1, P of 2 या P of 3 निकाल ले, उस हर किसी में न्यूमरेटर में e रेज़ टू माइनस लैम्बडा होगा ही होगा। लैम्बडा की वैल्यू तो सेम ही है, वो तो बाहर निकल जाएगा, बाहर यहाँ पे रह जाएगा, इट विल बी कॉमन। तो हाँ बचेगा सर, क्या? पॉइजन का तो समझ में आ गया सर पूरा। बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। सो हाँ, दिस इज द वे, दिस इज द रिक्वायरमेंट। ये जो हमने डिस्कशन किया उससे ये भी पता चल रहा है कि पॉइजन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों आया दुनिया में पॉइजन, क्यों किसी ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वेंट किया। दिस इज द रीजन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे चाहिए रिप्लाई हर एक बंदे का चैट बॉक्स में, क्योंकि आई एम गिविंग माय 100%। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ, समझ में आ रहा है तो भी बताओ, ताली बजानी है बजा दो, जो भी करना है कर दो। चलो नाउ इट्स योर टाइम रिप्लाई। काफी कंजूस लोग हो यार, रिप्लाई करने में भी देर लगा रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है तो ना बोल दो, हाँ बोल दो, अच्छी बात है। चलो गुड। मैं ये स्क्रीन निकाल रहा हूं, एक बार निकालने के बाद मैं यहाँ पे वापस नहीं आ पाऊंगा। गुड। So that will be the answer 0.0077. Okay. Now the last question. This will be for you guys. देख लीजिए एक बार, सॉल्व कीजिए। आई एम गिविंग यू 5 minutes। ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप करेंगे जल्दी से। अगर आपके पास कैल्सी नहीं है अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फाइनल आंसर कि वो क्या रहा है 0 point something something something। आई एम इंटरेस्टेड कि whether you guys are able to apply that formula or not। फॉर्मूला में जो भी टर्म है वो आप ठीक से अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, पर मुझे आपकी फॉर्मूला देखनी है कि आप फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई कर रहे हो। सो टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 5 minutes। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन right now। Between that, I am having one of the call। Let me put you guys on।